Hello everyone, we are back with part 3 of atomic structure. In this video we will be learning about quantum numbers. What are quantum numbers? How can we trace an electron? What is the energy of any shell? What is degenerate orbitals? So before we start with our topic, please like, share and subscribe the channel for the further notifications. So let's start with our content, quantum numbers. What are quantum numbers? Quantum numbers is a set of 4 numbers which gives you whole detail about an electron. Where electron is located, in which shell electron is located, and in which subshell electron is located. What is the energy of the orbital in which electron is located? Either electron is revolving clockwise or it is revolving anti-clockwise. It is similar to our address, as our address give whole information about our position, where we are located in this country, which state, which area, house number and then floor number. Similarly, a quantum number give us whole detail about the location of an electron. As irrespective of siblings, if we consider about the students in the class, irrespective of the siblings, no two students will be having same address. Similarly, no two electrons will be having same set of quantum numbers. The quantum number, it is a set of 4 quantum numbers. So what are those 4 quantum numbers? Very first quantum number over here is principal quantum number. But your very first quantum number is your principal quantum number. Principal quantum number tell us about the shell to which an electron belongs. It is denoted by small n. The value of n can be positive integer. So let's mention these points over here. Denoted by n. N can be positive integer. If value of n is equal to 1, shell is k. If value of n is equal to 2, shell is L. If value of n is equal to 3, shell is M. If value of n is equal to 4, shell is N, and so on. N is equal to 5, O. N is equal to 6, P. N is equal to 7, Q. But always be case sensitive while studying atomic structure. Like capital N denotes N shell, whereas small n denotes the value of principal quantum number, that is, it tells us about the shell to which an electron belongs. बच्चे irrespective of the number of the shell, सिर्फ shell का नंबर बताने की बजाय आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और भी बहुत सारी डिटेल्स देता है. लाइक इट टेल अस अबाउट द साइज ऑफ शेल. n की वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी, साइज जो है शेल का उतना बड़ा होगा. एनर्जी जो है शेल की वो उतनी ज्यादा होगी. सो वेयर इट इज यूज्ड, साइज ऑफ शेल क्या क्या बताता है ये आपको? ये आपको पहले तो बताता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है. फिर ये आपको क्या बताता है कि उस शेल का साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है. और क्या बताता है? एनर्जी ऑफ द शेल. कैसे? बोथ साइज एंड एनर्जी ऑफ द शेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यानी कि और मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि बोथ साइज एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन. अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो शेल का साइज भी ज्यादा होगा
और शेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। और किसके बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? और ये आपको बताता है कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या जिस शेल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है वो शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को एकमडेट कर सकता है। So this was all about principal quantum number. Let's revise it quickly. It is denoted by small n. Value of n can be positive integer and n can be up to infinity. And here we have mentioned some values of n. It tells us about the size of shell. It also tells us about the energy of shell. Both size and energy of the shell is directly proportional to value of principal quantum number. बच्चे सेकेंड क्वांटम नंबर इज योर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखिए फर्स्ट क्वांटम नंबर था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन किस शेल से बिलोंग करता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमें किसी इंसान को ट्रेस करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट में रहता है, स्टेट के बाद किस एरिया में। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन न्यूक्लियस पार्ट में सबसे पहले होते हैं शेल्स। These shells further contain subshells. Subshells further contain orbitals and orbitals are the ones in which electron reside. तो बेटा यहाँ पर भी अब हमें ये पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से बिलोंग करता है। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन फर्दर कौन सी सब शेल में है। तो सिमिलरली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इट डेजिग्नेट्स अबाउट द सब शेल। किसके बारे में बताती है? सब शेल के बारे में बताती है। डेजिग्नेट्स अबाउट सब शेल। As principal quantum number was denoted by small n. Similarly, azimuthal quantum number is denoted by small l. Value of L, that is azimuthal quantum number, varies from 0 to n-1. मतलब अगर हम बात करें m shell के लिए, if we talk about m shell, तो m for m shell value of n is equal to 3. If value of n is equal to 3, it indicates value of L can vary from 0 to 2. That is value of L can be 0, 1 and 2. There are 3 possible values of L for m shell. But now the biggest question is how these values of L are going to help us. Actually, with the values of L, some subshells are associated. If L is equal to 0, it indicates subshell is S. If L is equal to 1, it indicates subshell is P. If L is equal to 2, it indicates subshell is D. If L is equal to 3, it indicates subshell is F. So these are 4 possible values of L with which some subshells are associated. From here we can conclude that M shell contain 3 subshells, S, P and D subshells. बच्चे देखिए, this quantum number is also known as angular momentum quantum number. Now, why this quantum number is termed as angular momentum quantum number? This is because scientists have given a formula of angular momentum with help of which we can predict the shapes of these subshells. As
With the help of angular momentum, we predicted the shape of these subshells. So, this quantum number is also known as angular momentum quantum number. बच्चे एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज L इंटू में L प्लस 1 h by 2 pi. This was the formula of angular momentum. For S subshell, value of L is equal to 0. For P subshell, L is equal to 1. देखिए h क्या है? h is your Planck's constant. In some of the books you will see the formula is written like under root of L into में L plus 1 h bar. Now sometimes students get confused. बच्चे h bar is nothing. It is equal to h by 2 pi. पाई की वैल्यू हम सबको पता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14. h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.63 into 10 to the power minus 34. l की वैल्यू आप सबशेल के अकॉर्डिंग पुट करोगे. विद हेल्प ऑफ दिस you can calculate angular momentum of any subshell. आप किसी भी सबशेल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो. सो दीज आर आवर टू क्वांटम नंबर्स. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकेंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. बच्चे थर्ड क्वांटम नंबर इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एज द नेम इंडिकेट्स, इट टेल अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अंडर मैग्नेटिक फील्ड. हाउ एन इलेक्ट्रॉन बिहेव अंडर मैग्नेटिक फील्ड. It tells us about the orbital to which an electron belong. बच्चे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है आइदर बाय स्मॉल m और in some of the reference books you will see with ml. m सबस्क्रिप्ट L. ml की वैल्यू जो है वो लाई करती है ml इज इक्वल टू 2l प्लस 1. मतलब आप ये बता सकते हो कि किसी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 4 सबशेल्स तो हैं हमारी, s p d f. s के लिए l इज इक्वल टू 0, P के लिए L इज इक्वल टू 1, D के लिए L इज इक्वल टू 2 एंड F के लिए L इज इक्वल टू 3. तो देखिए बच्चे, if L इज इक्वल टू 0, so it is equal to 1, 3, 5, 7. अबव फॉर्मूला में L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट की हैं. इसका मतलब S सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, P सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, D सबशेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स एंड F सबशेल कंटेन 7 ऑर्बिटल्स. जैसे हम इसे ब्लॉक्स की तरह, हम अपने सबशेल्स को ब्लॉक्स की तरह भी दिखाते हैं. ये हो गई आपकी S सबशेल जिसके अंदर एक ही ऑर्बिटल. ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वन with clockwise spin, other one with anti-clockwise spin. Similarly, P subshell is having 3 orbitals. इस तरह से दिखाएंगे. Each orbital can accommodate 2 electrons. Clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise. Similarly, D subshell is having 5 orbitals. इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वन क्लॉकवाइज एंड अदर एंटी क्लॉकवाइज. F subshell contain 7 orbitals.
में एक ही ऑर्बिटल है, p सबशेल इज कंटेनिंग 3 ऑर्बिटल्स एंड द नेम ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स के नेम फर्दर हमने कैसे डिसाइड किए, जो ऑर्बिटल जिस एक्सिस में या जिस प्लेन में ओरिएंटेड है उसी के बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया। एज p subshell is having 3 orbitals and these are aligned in 3 different axes, so they are termed as px, py, pz. Similarly, d subshell 5 orbitals contain करती है। These orbitals are in certain planes, so they are termed as dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square। ऐसे ही f सबशेल, वैसे तो हम बोलते हैं कि f सबशेल की शेप फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड का मतलब क्या है, बिखरी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली किसी एक एक्सिस या किसी एक प्लेन में नहीं है, ये डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इसके भी कुछ ऑर्बिटल्स हैं, वैसे ऑर्बिटल्स के नाम स्पेसिफाई नहीं किए जाते, बट मैं आपको बता देती हूँ। एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे इनके ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड है। So these are the orbitals of any subshell. So till now we have studied 3 quantum numbers. Principal, azimuthal. Principal tell us about the shell. Azimuthal tell us about the subshell. Magnetic quantum number tell us about the orbital. Last quantum number, that is spin quantum number. It tell us about the spin of an electron. अच्छा, उससे भी पहले एक चीज और आपको यहाँ पे बतानी रहेगी बच्चे, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं आपने पढ़ी है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट अंडर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस वाज also indicated by this quantum number, that is magnetic quantum number, and these effects are known as Stark and Zeeman effect। जो आपकी एक स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सारी क्लोज्ड एनर्जी लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है, यही आपकी ऑर्बिटल्स इंडिकेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब वो स्प्लिट होती है, दैट इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। जब वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती है, दैट इफेक्ट इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। सो दिस इज your magnetic quantum number. This spin quantum number, it is denoted by either S, smaller case में आप लिखेंगे S, और MS, M with subscript S. It tells us that each orbital is having 2 electrons. And these electrons also rotate in 2 closely packed lines which are revolving in opposite direction। ठीक है, 2 closely packed lines की तरह जो है इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है और इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं ऑर्बिटल के अंदर, जिनमें से एक की स्पिन क्लॉकवाइज होती है और दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो आपके MS और S की 2 वैल्यूज हम डोनेट करते हैं, +12 और -12। If value of MS is equal to +12, it indicates electron is revolving clockwise। अगर MS की वैल्यू -12 है तो it indicate electron is revolving anti-clockwise। So these are our 4 quantum numbers। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके ऊपर बहुत डिफरेंट वेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक आपको किसी सबशेल को बता दें और पूछे उसका सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछे।
सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे दे और पूछे इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल से बिलोंग करता है, आपको क्वांटम नंबर का सेट दे दे और पूछे डज इट एग्जिस्ट और नॉट, इफ नॉट देन व्हाई, तो आपसे इस पे क्वेश्चन डिफरेंट वेज से पूछे जा सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट वे। वेरी फर्स्ट इज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर। आपको क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शंस कौन कौन से दिए, 3D, B, 4P, C, 5S। देखिए बच्चे, वेरी फर्स्ट पार्ट हम पिक कर रहे हैं 3D। 3D आपको पता है कि जो सबशेल से पहले वैल्यू लिखी होती है वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से बिलोंग करता है। यानी कि ये जो 3 है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से बिलोंग करता है यानी कि n की वैल्यू क्या है, 3। D सबशेल, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में if L is equal to 0 then subshell is S, L is equal to 1 subshell is P, L is equal to 2 subshell is D। तो यहाँ पे आपकी सबशेल कौन सी है, D, तो L की वैल्यू क्या हो गई, 2। सिमिलरली इनके लिए भी पहले यही पार्ट लिख लेते हैं। ये जो पहले वैल्यू लिखी होती है ये क्या बता रही होती है आपको, ये बता रही होती है अबाउट द शेल। सो n is equal to 4 and n is equal to 5। n is equal to 4 यानी कि ये इलेक्ट्रॉन n शेल से बिलोंग कर रहा है, n is equal to 5 यानी कि ये इलेक्ट्रॉन O शेल से बिलोंग कर रहा है। P सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 1, S सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि m की वैल्यू आपकी वेरी करती है -L to +L। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वेरीज फ्रॉम -L to +L। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, m वेरीज फ्रॉम -L to +L। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू है 2, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, -2, -1, 0, +1, +2। सिमिलरली यहाँ पे n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, -1, 0, +1। l ही 0 है तो m भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि -+0 तो कुछ नहीं होता। अब इसके बाद आती है आपकी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड दैट ईदर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज और इट इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, सो वी विल मेंशन हियर ms is equal to ±half। Similarly ms is equal to ±half, ms is equal to ±half। This is how you can calculate set of quantum number for any given subshell। एक चीज जो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में स्पेसिफाई नहीं की थी, मैंने आपको ये तो बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, जो किसके इक्वल था 2l + 1। बट उन वैल्यूज की वैल्यू क्या है, तो द वैल्यू ऑफ दोज वैल्यूज इज -L to +L, लाइक -3 to +3। F सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 to +3। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको क्वांटम नंबर का सेट दे दिया जाता और आपसे पूछी जाती कि डज दिस क्वांटम नंबर एग्जिस्ट और नॉट, इफ यस देन स्पेसिफाई द सबशेल corresponding to it। With the help of these sets, which set of quantum number will exist and which will not? If the set of quantum number will exist, then predict the subshell
If not, then mention the reason. This is the another type of question which appears in CBSE as well as in IIT exam. In entrance examination, how this question appear? There they provide you 4 set of quantum numbers and either they ask which is valid or which is invalid. ठीक है, वहां वो आपसे रीजन को जस्टिफाई करवा नहीं सकते. So they simply ask which one is either valid or which one is not valid. So let's start with the very first part. n is equal to 2. बच्चे n is equal to 2 यानी कि ये जो कौन से शेल की बात हो रही है? m शेल. l is equal to 1. l is equal to 0 तो s सब शेल. l is equal to 1 तो p सब शेल. ये आपने भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में पढ़ा है. यानी कि ये सेकेंड शेल के p सबशेल की बात हो रही है. तो ये किस सबशेल की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं 2p के बारे में. m is equal to 0. p सबशेल के लिए m की वैल्यू 0 हो सकती है. s is equal to plus half. इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूम सकता है. So the subshell corresponding to this set of quantum number is 2p. आप मेजरली n और l की वैल्यू से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी सबशेल है. n is equal to 2. अगेन l शेल l is equal to 2. l की वैल्यू भी 2 है तो l की वैल्यू 2 यानी कि d. 2d. क्या 2d एग्जिस्ट करती है? सेकेंड शेल के पास आपकी d सबशेल होती है? नहीं होती. डी सबशेल स्टार्ट ही हमारे कौन से शेल से होती है? थर्ड शेल से. सो दिस सबशेल शुड बी 2d which does not exist. अब आप इसको और कैसे मेंशन कर सकते थे? आप इसका रीजन दे सकते थे कि वैल्यू ऑफ l वेरीज फ्रॉम 0 to n minus 1. यानी कि l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होती है, n के इक्वल नहीं हो सकती. या तो आप ये रीजन में लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो? इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 दैट इंडिकेट्स l शेल एंड l इज इक्वल टू 2 इंडिकेट्स d सब शेल एंड l शेल डज नॉट कंटेन d सब शेल. आप इसको किसी भी एक रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. So this quantum number exists and this does not exist. Let's move to third one. n is equal to 3. KLM. m शेल की बात हो रही है. l is equal to 1. p सबशेल की बात हो रही है. तो 3p एग्जिस्ट करती है. लेकिन आगे देखो m is equal to 2. m की वैल्यू हो गई 2. m की वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू वेरी करती है? वैल्यू ऑफ m वेरीज टू -l2 प्लस l. यानी कि m की वैल्यू हो सकती थी -1 to +1 बट यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दी हुई है? 2. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. तो आप यहाँ पे ये रीजन मेंशन करेंगे दैट वैल्यू ऑफ m वेरीज फ्रॉम -l2 प्लस l. So the value of m could be -1, 0 or +1 for this subshell. So this quantum number does not exist. अगला देखते हैं हम. n is equal to 2. KLM. m शेल की बात हो रही है. l is equal to 0. s सबशेल की बात हो रही है. तो यानी कि हम किसके बारे में? l शेल की s सब. देखिए नेक्स्ट देखते हैं. n इज इक्वल टू 2 यानी कि l शेल की बात हो रही है. l इज इक्वल टू 0 यानी कि s सब शेल की बात हो रही है. तो यहाँ आ गया 2s. m इज इक्वल टू 0 विच कैन एग्जिस्ट क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि m की वैल्यू -l से +l तक वेरी करती है. ठीक है. s इज इक्वल टू +½ विच इज ऑल्सो पॉसिबल. तो ये क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है और सबशेल कौन सी है? 2s. सिमिलरली आगे देखिए
n इज इक्वल टू 4 यानी कि n शेल, l इज इक्वल टू 3 यानी कि f सब शेल। तो इसका मतलब क्या है 4f। m की वैल्यू -l टू +l हो सकती है, यानी कि -3 से +3 हो सकती थी, तो -1 तो हो ही सकती है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, तो इसमें से उसने एक वैल्यू मेंशन किया -1 विच इज पॉसिबल। s की वैल्यू क्या है +12 विच इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एटम को कैसे डिवाइड किया जाता है, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे स्प्लिट होता है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कैसे स्प्लिट होती है फर्दर फाइन लाइंस के अंदर। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद Pauli's exclusive principle and Hund's rule of multiplicity. We will keep our content till here only in this video. See you all in the next video with Pauli's exclusive principle and Hund's rule of multiplicity. If you have any doubt, then please comment. Please like, share and subscribe the channel for further updates. Thank you all for watching.